How do we truly live life to the fullest without being consumed by worry? People who are just managing their life. They are not living their lives. What is the line between planning wisely or over planning or over controlling the life? You have to plan wisely because you cannot control all the situations. We are exploring a question that almost every one of us has asked at some point. How do we truly live life to the fullest without being consumed by worry? We all have responsibilities, we all have deadlines, we all have relationships, bills, and a lot of dreams. Somewhere along the way, many of us start positioning joy until everything feels sorted. But what if life doesn't work that way? ऐसे काम नहीं करती. To explore this, I am joined by someone whose perspective I deeply appreciate. Welcome, Prakhar Kulshrestha. He is a fellow coach, and it's such a pleasure to have you here. Prakhar, I would please ask you to come online, unmute yourself, and introduce yourself. All right, guys. We are live. Hi, my name is Prakhar Kulshrestha. Thank you so much, Pari, for inviting me, for having me on this podcast. Looking forward to help your audience to get more insights about what is life, how to lead it with happiness and joy in this whole world of uncertainty and loop of past where they are not able to come up from the past and they are not able to exactly identify what they should do in these uncertain conditions. And thank you so much, Pari, for having me. I was waiting for this moment for a very long time because Yes. I feel inside that audience needs something which is inside us. So what we have inside, it definitely should be distributed to all those people who are in the conditions where they are not exactly able to identify why they are stuck at the point where they are stuck. Okay, so thank you so much, and many kudos and congratulations to you that you are having a good community. You are doing an awesome work already Thank to you. helping people live a life where they can have total freedom. I'm not talking about the freedom of time, money, and location and that money part. I'm talking about the mental freedom. This is the actual real freedom that even if somebody does not have any other physical resources, but if they are free from here, then definitely they can achieve whatever they want in their life. So thank you so much for the Absolutely. awesome work that you are doing for them. Thank you. Thank you, Prakhar. Thank you. So before we get into the deeper question, I would like to ask our audience something that when somebody asks, "How are you?" What does your honest answer look like these days? Okay, just something to begin with. So let's just explore with our first question to Prakhar, which is that, Prakhar, when you hear the phrase living life to the fullest, what does it truly mean to you? Has that definition changed over the years? So most of the people which I ever met, till now I have ever met, they are all those people who are just managing their life. They are not living their lives. Why? Because somehow they are stuck in their responsibilities, their family work, and everything which is just going on around themselves only. इससे बाहर भी कुछ एक दुनिया है, उनको लगता है सिर्फ जिम्मेदारी निभा देना, यही तो अपना काम है, यही तो पर्पस है इस दुनिया का। लेकिन क्योंकि वो इसी से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए कुछ और बाहर भी नहीं सोच पा रहे हैं और कभी-कभी इसी में इतना वो फँस जाते हैं, दे फॉरगेट अबाउट लिविंग द लाइफ। ये लाइफ को जीना भी होता है, हमें तो लगता है बस यही तो जीवन है, अपना घर परिवार चला रहे, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यही तो जीवन जीना होता है। लेकिन कहीं न कहीं इसी बीच में उनका जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है, वो खत्म होती चली जाती है। उनको इस बात की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती कि खुश भी रहना ज़रूरी है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें खुश ही होना ज़रूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसी के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटी कम है तो मेरी हैप्पीनेस कम होनी चाहिए। यानी कि हैप्पीनेस मुझे जो फ़ील हो रही है, जो अमाउंट है फ़ीलिंग का हैप्पीनेस का वो कम नहीं होना चाहिए। जिसके पास 1 करोड़ रुपए है उसके अंदर जो हैप्पीनेस की फ़ीलिंग है, वही सेम फ़ीलिंग उस 1000 या 1 लाख महीने कमाने वाले पर भी होनी चाहिए। ये सबका बराबर का हक है और एग्ज़ैक्टली लोग इसी को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हैप्पीनेस बाहर के रिसोर्सेज से आएगी। इसी चक्कर में वो Absolutely. That अपने the happiness will come when I will get a certain job, when I get a certain person in my life, यस, when I get a certain amount of status in my life, when I achieve something or when I go somewhere, when I lose a certain amount of weight. We keep postponing our happiness, right? कि हम postpone करेंगे इसको जिस दिन ये मिल जाएगा उस दिन हम खुश हो जाएंगे and
They just keep on managing the responsibilities. Thank you. Thank you so much for that. My next question is, why do our worries feel more real than the present moment? Is worrying our brain's way to try to create certainty? What do you think about this? Sometimes all these worries are not 100% real. Sometimes they may be real, but Right. if they are not real, then they are in our mind. And if they are in our mind, but still they are not in the physical world, they will seem that they are real. So the best way is to remove all those worries from your mind. Once you remove, तो वक्त चिंता करने का नहीं है, ये वक्त है चिंतन करने का। चिंतन इस बात का करना है कि ये फाइंड आउट करने का कि सच में ये प्रॉब्लम हमको हो रही है, चिंता करने की जरूरत है भी नहीं है, क्या इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? अगर है तो उस सोल्यूशन की तरफ जाइए और उस पे काम कीजिए स्टेप बाय स्टेप। आपकी वो सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं चिंता या तो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है, या फिर आपको कुछ सिखाना चाह रही है, इसलिए वो चिंता आपके पास में आई है। तो या तो सीख लीजिए या फिर जल्दी से आगे बढ़ जाइए। कुछ नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, फिर तो आपके पॉजिटिव के लिए ही है, आगे बढ़ते चले जाइए। बट एग्जैक्टली चेक कीजिए क्या वो रियल एग्जिस्टेंस में है या फिर नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में। अगर नहीं है तो सिर्फ माइंड में होगी, तो उसको क्लियर कीजिए। वो क्लियर हो गया, फिर आपकी लाइफ सॉर्टेड है। चिंता खत्म, चिंतन शुरू, फिर आपकी लाइफ सॉर्टेड। Absolutely. So I think Prakhar beautifully summarized it, that worrying versus analytical thinking. Okay. So your mind will constantly want to have that safety and security and certainty, that because this world is full of uncertainty from the moment we are born. So, and as children, we had certainty that we have our parents as security. And the moment we start adulting or we become adults, that certainty stops to exist because we don't know what lies ahead. So rather than worrying, get to analytical thinking rather than getting in the cobweb of the lies of the mind. Mind will keep on creating those cobwebs that, all right, this and then this and then this, like Prakhar said, that really check whether it is existing in the physical world or not. Prakhar, next question is leading from this, that do worries really ever end, or do they simply change their shape as the life changes? जब तक ये इंसान का जीवन रहेगा तब तक चिंताएं तो खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ एक नई चिंता लगी रहेगी। हर बार आप सोचेंगे यार ये तो मैंने कर लिया, बट व्हाट इज नेक्स्ट, अभी मुझे आगे भी कुछ करना है, क्या करना है, फिर उसके ऊपर आप सोचेंगे। तो चिंता खत्म नहीं होगी, बट उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। हो सकता है अभी आपका कुछ गोल है, उस चीज को लेकर के आपको चिंता हो, देन यू कैन ओवरकम दैट वंस यू अचीव द गोल। फिर नेक्स्ट माइलस्टोन है, उसकी चिंता शुरू हो जाएगी। तो खत्म तो नहीं होगी, बट दे विल कीप चेंजिंग देयर शेप्स। और इसी बीच में आपको ये सीखना होगा कि उस चिंता से कैसे लड़ना है, उससे आपने क्या सीखा। और एग्जैक्टली वो जो चिंता है, जो वरीज हैं, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए इन ए बैड वे। अगर बैड वे में आपको इम्पैक्ट डाला तो फिर आगे वाला जो फ्यूचर है वो भी आपका खराब हो सकता है, क्योंकि आप उसी के चिंतन में नहीं लगेंगे, सिर्फ चिंता में लग जाएंगे, फ्यूचर खराब करेंगे, प्रेजेंट में एक्शंस नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये सीखना होगा कि कैसे ये जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आ रही है, वो चिंता दे रही है, उसको हमें या तो कुछ लेसन उससे लेना है, वो सीख लेना चाहिए, या फिर एग्जैक्टली जो एक्शंस लेने हैं, क्या वो एक्शन हम ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, उस पर हमको फोकस कर देना चाहिए। और ये चिंता हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। अमेजिंग, एब्सोल्युटली, आई कम्प्लीटली एग्री। और आपको हमेशा ना जिम के एग्जांपल से समझाती हूँ। जो इंसान फर्स्ट टाइम जिम जाता है एंड दे स्टार्ट लिफ्टिंग 2 kgs ऑफ वेट, तो दैट इज द बेबी स्टेप, दैट ओके, यू नो, फर्स्ट टाइम आप गए हो एंड यू स्टार्ट विद 2 kgs एंड देन आफ्टर दैट 3 एंड देन 5 एंड देन 10। तो अगर आप उस 2 kg पे ही अटक जाओगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट द हायर वेट। सो यू हैव टू इंक्रीज योर कैपेसिटी। सेम वे worries will keep on changing throughout your life. You just have to increase your capacity. हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें अपनी रेजिलियंस बढ़ानी है ना, इस चीज के लिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कभी, यू नो, यू एवर लुक बैक एंड रियलाइज्ड that you actually spent months or years worrying about something that never really happened? Okay, and अगर ऐसा हुआ है, then इसने आपको क्या सिखाया? डेफिनेटली बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हाँ, जब भी कोई ह्यूमन बीइंग होगा यहाँ दुनिया में, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित जरूर होगा, और जिससे वो कुछ नया सीखता है। और उसमें उसको लगता है यार मैंने बहुत समय खराब कर दिया, जो मुझे नहीं खराब करना चाहिए था। टाइम खराब होगा, पैसा भी खराब होगा, कभी कभी एफर्ट्स लगेंगे, मेंटल आपको वीकनेस हो जाएगी। तो ये मेरे साथ जो हुआ वो दूसरे लोगों की वजह से हुआ, उन्होंने आकर के पूरी जिंदगी को हिला डाला। और फिर उनको अब मैं ब्लेम करूं, तो अब उनको ब्लेम करने से क्या होगा, कुछ बदलेगा तो नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज अवर पास्ट। व्हाट वी कैन डू इज व्हाट इज इन अवर कंट्रोल, वो हम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा फोकस चेंज हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़े से, बस वही वो चीज़ है।
और जो सीखा मैंने वो वही चीज़ है कि अपना फ़ोकस बनाए रखना है अपने गोल्स पर, अपने अचीवमेंट्स के ऊपर। दूसरे क्या कर रहे हैं उनको छोड़ो साइड में। उन्होंने जो किया वो जानेंगे, उनकी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो दे विल फेस देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कर्मा। राइट। बट हमें अपना फ़ोकस बनाए रखना है अपने गोल्स पर जो हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ़ में। बस यही मैंने उससे सीखा है। हर उस व्यक्ति या फिर उस वस्तु, स्थान जो भी चीज़ है, जो आपके मिशन और विज़न में अगर वैल्यू ऐड करती है, उसको आप अपनी लाइफ़ में रखिए। जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको साइड में करते जाइए। अदरवाइज़ वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता रहेगा, फ़ोकस को डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। आपको जहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचने में वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों को छोड़िए, ऐसी जगह को छोड़िए और ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के आगे बढ़िए, क्योंकि आपका फ़ोकस चेंज नहीं होना चाहिए। ये सब आपके फ़ोकस को बिगाड़ने के लिए आती है चीज़ें, बाकी इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। आपका फ़ोकस टू द पॉइंट जो आपका गोल है, वहीं फ़ोकस रहना चाहिए आपको, उसी की ओर काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रखर, एंड आई कम्प्लीटली अग्री। जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं या चीजें आपकी लाइफ में आती हैं कुछ भी डिसरप्ट करने के लिए, लाइक ऑल द वरीज दे ऑल्सो, ताकि आप उनसे कुछ सीख सको, ताकि आप उनसे आगे बढ़ सको। I truly believe in this. Whoever is meant for your life, they will stay with you for a very long duration. Whoever is not meant for your life, they will come for a chapter. जैसे एक चैप्टर होता है ना किताब का, वो खत्म हो जाता है, फिर हम अगले चैप्टर पे जाते हैं। तो यस। सेम वे एक पर्सन का भी एक चैप्टर होता है कभी कभी आपकी लाइफ में। वो पूरी बुक में रहने के लिए नहीं आता कैरेक्टर, कभी कभी वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, कैमियो अपीयरेंस करते हैं, एंड देन दे गो ऑफ दैट, ओके यू नो, अभी थोड़ी देर के लिए आए, गेस्ट अपीयरेंस दिया उन्होंने, एंड देन वो चले गए, एंड उनका जो भी रोल था आपकी लाइफ में, they just हुँ, fulfill that role, and you are only meant to progress from there and not regress from there. बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, पीपल लाइक टू बी रिस्पॉन्सिबल, एंड सबके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट? तो हुँ। क्या कोई रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, एंड कैन समबडी ऑल्सो लिव स्पॉन्टेनियसली, लाइक ऑन द स्पॉट, दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल बट आई विल ऑल्सो बी लिविंग स्पॉन्टेनियसली? व्हाट इज द लाइन बिटवीन प्लानिंग वाइजली और ओवर प्लानिंग और ओवर कंट्रोलिंग द लाइफ? कि एक होता है हम अच्छे से प्लान करेंगे, होता है हम ओवर कंट्रोल करेंगे हर चीज को, तो व्हाट इज द यस, यस। डिफरेंस? इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि ये एग्ज़ैक्टली वो चीज़ है जो स्कूलों में सिखाई नहीं जाती, जो सिखा देना चाहिए। क्योंकि एक ही टाइम पर बच्चों को एग्ज़ाम का प्रेशर भी है और एक टाइम बिल्कुल। पर उनको घर का भी जो प्रेशर है वो भी बियर करना है, प्लस पीयर प्रेशर भी है। आप आपके जो फ्रेंड्स हैं, कोई ज़्यादा पढ़ रहा हो, कोई कम पढ़ रहा हो, वो ऊपर से टीचर भी बोलेगा, "अरे! आप तो टॉपर हो, आपको तो अच्छे मार्क्स लाने चाहिए।" उधर घर वाले बोल रहे हैं, "तुझसे तो कुछ होता नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता।" तो वो हम्म। बेचारा परेशान है और फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे हैं, "चलो घूमने चलते हैं, खेलने चलते हैं।" तो हर तरफ से फँस जाता है व्यक्ति और वो जितनी छोटी स्टेज में होगा वहीं से अगर उसको सिखाया जाए, तो आने वाले जो लाइफ़ के ईयर्स होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है, उस टाइम में भी सिचुएशंस को हैंडल करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। बट हाँ, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आप ऊपर लेके आइए और सच में देखिए कि अभी इम्पोर्टेंस क्या चीज़ रखती है, उसको ऊपर लेके जाइए, बाकी चीज़ों को नीचे रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तभी आप स्पॉन्टेनियसली जी भी पाएँगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा भी पाएँगे। और जहाँ बात आती है इन दोनों बातों की कि क्या एक पतली-सी लाइन है ओवर कंट्रोलिंग और प्लानिंग वाइज़ली में, तो हमेशा यू हैव टू प्लान वाइज़ली बिकॉज़ यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल द सिचुएशंस। आपको हमेशा वो बनता है ना फ्लो चार्ट जैसे हम बनाते थे। मुझे याद है 10th क्लास में हाँ, जावा थी वर्क हमारे फ्लो। पास। हाँ, वो वर्क फ्लो। वर्कफ़्लो और वो बनता था तो उसमें यस आया तो इधर, नो आया तो इधर, फिर यस आया तो इधर, नो आया तो इधर। तो यस। आपको दोनों सिचुएशंस लेके चलनी चाहिए। अगर यस हुआ तो ये होगा, क्योंकि हर वक़्त ज़रूरी नहीं है यस ही आता जाएगा लाइफ़ में, नो भी आएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू बी अ पर्सन जहाँ पर नो आया तो या तो स्टॉप करना है या फिर फाइंड अनदर वे टू रीच अप टू द गोल। फिर यस आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर या तो स्टॉप हो जाओ या फिर रास्ता बदलो। उस रास्ते पे जाना मत करो, दूसरा रास्ता पकड़ो। तो सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डू नॉट ट्राई टू ओवर कंट्रोल योर लाइफ। सिर्फ़ वहाँ तक काम कीजिए जहाँ पर राइटियसनेस के वे पे चलते हुए वो सारे काम करें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपके गोल तक पहुँचा रहे हैं। हाँ, उसमें कहीं भी कोई जालसाज़ी, धोखेबाज़ी या षड्यंत्र रचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका नेगेटिव कर्मा भी बन सकता है। आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को दुःख भी पहुँचा सकते हैं, जो कि जी। बाद में फिर अभी नहीं, बाद में लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको ही उसका रिटर्न में कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है। और ओवर कंट्रोल नहीं करना, जितना आपके कंट्रोल में है, जो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए, वो आप अपना बेस्ट दीजिए और उसके बाद जो हो, वो छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, क्योंकि आपका काम सिर्फ़ कर्म करना है
और इसी कर्म को करते हुए आपको एंजॉय भी करना है। यू हैव टू रियली एंजॉय द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। Not the जो rest. मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको पता भी नहीं है, लेकिन जर्नी तो आपके हाथ में, जो आप कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से करते हुए जाइए कि यही मेरा काम है, बस यही मान के चलिए कि यही मेरी डेस्टिनेशन है। जब आप ये मान के चलेंगे ये काम करना ही मेरी डेस्टिनेशन है, हर एक स्टेप जो आप कर रहे हैं यही आपकी डेस्टिनेशन है, फिर आपको इसमें एंजॉयमेंट भी मिलेगा। फिर आप नहीं सोचेंगे कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी तब मुझे खुशी। तो ओवर कंट्रोल करने का प्रोसेस छोड़ दीजिए, जो अभी आप कर सकते हैं बस उस पर कंट्रोल कीजिए, जो आपके हाथ में है। क्योंकि कर्म करो फल चेतना करो, ये तो भगवत गीता में भी आपको बताया गया है कई बार, तो बस उसी पर फोकस कीजिए। Thank you for that, Prakhar. And I think we cannot control anything in our life. Okay, all we can do is जो हम इस मोमेंट में कर रहे हैं क्या वो हम 100% कर सकते हैं, राइट? यस उससे यस। ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इस मोमेंट में अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं, दैट इज ऑल वी कैन डू, राइट? एंड अगर हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल अब अगर इस पॉडकास्ट में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, यू नो, समथिंग समथिंग दैट इज नॉट प्लान्ड राइट नाउ, सो देयर इज यस। नो पॉइंट ऑफ काइंड ऑफ गोइंग बरसेक ओवर इट। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी भी एक बार हमारे हाथ में है, मे बी यूपीएस लगा सकते हैं, जनरेटर चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट मे बी कुछ और हो सकता है विच मे नॉट बी इन आवर हैंड्स, विच इज कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर हैंड्स। उसको आई डोंट थिंक वी कैन कंट्रोल, एंड उसको उसको सोच के भी फायदा नहीं है। नहीं। तो आई थिंक एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, अभी रिसेंटली आई हैड गॉन फॉर अ डांस परफॉर्मेंस ऑफ अ 11th स्टैंडर्ड गर्ल, and she danced so gracefully and so beautifully, Kathak Rang Pravesh, and everybody was telling that she's a leader in every space, she does everything very nicely. तो वो कैसे कर पाती है इतना सब कुछ? वो तभी कर पाती है अगर वो सब जगह पे अपना 100% देती है, राइट? और जो हम्म। चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है वो आपको छोड़नी ही पड़ेंगी कभी ना यस कभी, यस। कुछ चीजें नहीं है डेफिनेटली। आपके कंट्रोल में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट डू यू थिंक पीपल सैक्रिफाइस फर्स्ट व्हेन वरी और ओवर थिंकिंग बिकम्स देयर डिफॉल्ट मोड? सबसे पहले क्या छोड़ते हैं लोग, सबसे पहले क्या, किस चीज की बलि चढ़ाई जाती है? इज इट देयर ओन खुशी? इज इट देयर रिलेशनशिप? इज इट द क्यूरियोसिटी? इज इट क्रिएटिविटी? किस चीज को सबसे पहले हम तिलांजलि देते हैं? सैक्रिफाइस तिलांजलि तो। सबसे पहला जो सेक्रीफाइस होता है ना लाइफ में, जब भी कुछ गलत हो रहा होता है, लाइफ में अनसर्टेनिटी चल रही होती है, तो लाइफ से जॉय खत्म हो जाता है। और जैसे ही जॉय खत्म हुआ उसके बाद तुरंत मन की शांति खत्म हो जाती है, क्योंकि मन भटकने लगता है, बिखरने लगता है। और जब ये सब हुआ फिर इसके बाद में अब चीजें और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएंगी। इट कुड बी योर रिलेशनशिप्स, इट कुड बी योर क्रिएटिविटी, इट कुड बी योर हॉबी ऑल्सो। समटाइम्स पीपल यूज, पहले हॉबी में लगे रहते थे बट अभी मन खराब हो गया तो फिर हॉबी भी छोड़ देते हैं। तो जॉय अगर है तो फिर शांति भी रहेगी, मन खुश होगा, फिर आप सारे काम अच्छे करते चले जाएंगे। तो जॉय बनाए रखिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वो तरीका सीख लिया कि जॉय को कैसे बनाए ही रखना है हमेशा, चाहे अच्छा हो तब भी, बुरा हो तब भी। आपने देखा हुआ पीपल गो टू फ्यूनरल और वहां पर भी वो हंस रहे होते हैं, उधर भी वो जॉय के मोमेंट्स लेके आ जाते हैं, जबकि वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको श्रद्धांजलि देनी है और रिस्पेक्ट के साथ वहां खड़े रहना, लेकिन उधर जाके हंसी मजाक कर रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग उन लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं जिनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई होती है, कि उनको कुछ अच्छा फील हो उनके लिए भी। तो वो भी एक प्लेस है। जॉय बना रहेगा तो फिर बाकी एक्सटर्नल जो चीजें हैं वो आपके माइंड में हावी नहीं हो पाएंगी, हावी नहीं होंगी तो फिर आप खुश रहेंगे। मन जब खुश होता है फिर सारे काम अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इंटरनल हैप्पीनेस एंड देन द पीस, मतलब इंटरनल जॉय, जो हमारा आनंद जिसे बोलते हैं, खुशी नहीं बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, आनंद। ठीक यस। है, आनंद बोलते हैं। तो वो जब हमारा चला जाता है देन बाकी चीजें भी चली जाती हैं, एंड फिर काम में भी मन नहीं लगता। आप नॉट ओनली योर हॉबीज, आई थिंक आपका बेसिक जो काम होता है, आप एकदम फ्रीज मोड में चले जाते हो। कभी कभी आप पूरे दिन पड़े रहते हो, एंड गाना हम्म। गाते हो मे बी बैठ के कि टुडे आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, ब्रूनो मार्स का, ठीक है वो भी कर सकते हैं। बट yes, आई मीन सब कुछ चला जाता है once the joy goes, I guess. So thank you Prakhar for that one. My next question is, if you knew everything would somehow work out in the end, कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, सब कुछ एंड में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, अंत भला तो सब भला वाला हिसाब हो जाएगा, तो आप कल क्या अलग करेंगे? ठीक है, और वो उसको जीने से आज हमें क्या रोक रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम लिविंग दैट टुडे? ओके, तो जब ये बात आती है ना कि अंत में जाकर के सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, अंत में जाकर के होगा ना, लेकिन अभी
मन ने और ने तो वो जाना नहीं है कि अंत क्या होगा और कब होगा, तो वो राइट। पता नहीं है, इसलिए अब कंफ्यूजन में है कि यार चलो एक बार मान लेते हैं वास्तव में सब अच्छा हो जाता, हो भी जाएगा, लेकिन अभी हमको तो भरोसा नहीं है ना, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा ना कि सब जी। अच्छा हो जाएगा। जब जी। नहीं भरोसा हो रहा, दिख ही नहीं रहा, तो फिर कैसे मान लें सब अच्छा हो जाएगा। और इसी चक्कर में फिर लोग क्या करते हैं कि सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी। उनको ऐसा लगता, क्योंकि एक तो उनको सिखाया नहीं किसी ने कि भाई बाद में जाकर के सब अच्छा होगा, जो हो रहा जी। है वो अच्छा हो रहा है, और जो आगे हो वो भी अच्छा होगा, आपके उसी उसी व्यक्तित्व को बनाने के लिए होगा जिसके लिए आप यहाँ बनने के लिए आए हैं। जो आप बनेंगे आप वहीं पहुंचेंगे कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन इंसान को लगता है यार मुझे तो कुछ दिखाई नहीं रहा, कुछ सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा, फिर वो सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इसमें जो सही टाइमलाइन चल रही होती है भगवान की, उस टाइमलाइन को वो बिगाड़ देता है और अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता है। इस चक्कर में कभी कभी दूसरों को भी वो प्रॉब्लम कर देता है। फिर बाद में उसको रियलाइज होता है यार सब कुछ ठीक तो हो गया, मैंने बेवजह ही खामखा इतना एफर्ट लगाया, दूसरों को प्रॉब्लम किया, लेकिन अब उसको पछतावा इस बात का हुआ कि अब मेरी वजह से जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, अब वो तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। लेकिन यार सब कुछ सही तो हो गया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत। प्रॉब्लम फिर वही है कि आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जो चल रहा है वो चलने दीजिए, अंत में जाकर के सबका अच्छा ही होगा। अरे किसी ने अगर आपको यहाँ बना करके भेजा है, तो किसी उद्देश्य से ही भेजा होगा ना, कुछ आपके अंदर है, उस क्वालिटी को उन्होंने निखारा आपके अंदर भेजा, बस आपको वो पहचानना, उसके ऊपर काम ही तो करना है। आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो हम चाहेंगे वो होगा, तो तो करो तो भैया। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है दैट व्हेन यू से कि कुछ कंट्रोल नहीं करना हमें, तो क्या, दो क्वेश्चन है इनफैक्ट, कि वन इज दैट कि जब हम कह रहे हैं कि कुछ कंट्रोल नहीं करना, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई काम नहीं करना, हम हमें सब छोड़ नहीं देना है? नहीं पॉइंट नहीं। नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज व्हेन यू से दैट कुछ लोग बोलते हैं कि आपको किसी ने बना के भेजा होगा या आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक है, हम्म। तो वो, is there a way to identify the qualities that we have, the good qualities that we have, or whatever work we are meant to do in this यस lifetime? यस So यस, तो that's the पहला पहला question. क्वेश्चन वो कि कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो करना है। और Hmm. वो जो आप डेली काम कर रहे हैं वो आपको करते ही जाना, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब है को ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने फेवर में लाने की। बिकॉज यू नेवर नो कि जो आउटकम आएगा वो आपके फेवर में होगा, ये आपके अगेंस्ट में होगा। लेकिन हाँ इस बात का 100% श्योरिटी है कि वो जो आउटकम आएगा वो आपके बेहतर वर्जन के लिए होगा, चाहे Okay. वो आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। तो बेसिक एक चीज जो लोग कंट्रोल करने के लिए करते हैं वो है बहुत सारा सोचना, दिमाग पे जोर, एंड बहुत सारी ओवर थिंकिंग। बेसिकली आप बोल रहे हो कि वो नहीं करना है, फोकस ऑन योर यस। वर्क, नॉट ऑन द ओवर थिंकिंग, नॉट ऑन द हाउ इट विल हैपन प्रोसेस। हाउ इट विल हैपन, व्हेन इट विल हैपन, यस। ये सब क्यों हुआ, इसमें नहीं आपको इंडल्ज होना अपने आप को, टाइमलाइंस केवल पे फोकस केवल। नहीं करना है, सिर्फ करंट मोमेंट पे फोकस करना है, इन द प्रेजेंस। एंड द सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वालिटीज? हाँ तो सबसे बड़ी चीज ये वो है जो हर इंसान को दी हुई है, इस दुनिया में आए हुए हर व्यक्ति, लेकिन हर कोई उसको पहचान नहीं पाता। इनफैक्ट मैं यस। एक बार अपने भाई से बात कर रहा था, तो मैंने उन्होंने मुझसे बोला कि क्या करना चाहिए लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कुछ फ्रेंड्स भी हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा। देन आई टोल्ड कि पहले पहचानो कि आपका टैलेंट क्या है, व्हाट इज दैट वन सिंगल थिंग दैट गॉड हैज सेंट यू ऑलरेडी, वो आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है। आप अपना टैलेंट पहचानो, वो टैलेंट ही नहीं पहचान पा रहे हैं। और वो टैलेंट क्या है, दिया तो सबको है भगवान ने वो टैलेंट। टैलेंट मीन्स समथिंग बाय विच यू कैन डू एनी वर्क विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट, और वो ऐसा लगना चाहिए कि यार कितना अच्छा काम किया। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट में मैक्सिमम आउटकम अगर आप ला करके दे देते हैं किसी भी काम में, तो वही आपका टैलेंट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को बोलने में अच्छा बनाया भगवान ने, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि बहस बहुत करते हैं। अरे जब बहस करते हैं तो आपका वो टैलेंट, आप उसको सही जगह यूज करो ना। आप गलत जगह लड़ने लग जाते हो लोगों से। आप तो एक लीडर बन सकते हो, अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हो, मास कम्युनिकेशन में चले जाओ, वो डिग्री आप हासिल करो, आप लॉयर बनो। यस। कुछ यस। लोग बहुत ड्राइंग में क्रिएटिव होते हैं, अब वो ड्राइंग में क्रिएटिव है लेकिन क्या करना है, वो चले गए इंजीनियरिंग में, या फिर वो कुछ और काम करने चले गए, वो सिंगिंग में चले गए। हम्म। सिंगिंग अच्छी है तो वो चले गए पेंटिंग में। अरे जब सिंगिंग अच्छी है तो फिर आप पेंटिंग में क्यों जा रहे हो, आप पहचान ही नहीं पा रहे आपका टैलेंट है क्या। टैलेंट ही वो चीज है जो आपको आपके उस बेस्ट वर्जन के लिए लेके जाएगी जो बनाने के लिए आपको यहाँ भेजा है।
तो और अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मेनी पीपल से दैट हमारी तो तीन चार चीजें अच्छी हैं, अब हम कैसे जाने कि हमारे पास एक ही टैलेंट है? नहीं, ऐसे थोड़ी तीन होता चार है। चीजें जरूर हो सकती हैं, पांच छह भी हो सकती हैं, बट इसमें एक वो चीज ऐसी होगी जो सबसे सुपर होगी आपके अंदर। वो आपकी खुद अंतरात्मा बताएगी कि मेरा ये बेस्ट है। यू विल Awesome. कंपेयर ऑन योर ओन कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। इसमें तो 5 ही मिनट लगे, उसको करने में 20 मिनट लगे, उसको करने में 50 मिनट लगे, उसको करने में 2 घंटे लगे। तो कम राइट। टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट किससे अच्छा आया, जिसको आपको भी अंदर से अच्छा महसूस हुआ, वो आपको हम्म। पिक करना होगा। बट ये धीरे धीरे करते करते आ पाएगा, और जो पहचानेगा उसको वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। कभी कभी लोगों को 40-50 साल बाद रियलाइज होता है, यार 50 साल तक तो मैंने जॉब ही की है एज ए मैनेजर बैंक में, और मेरा टैलेंट ये था, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो मुझे तो सिंगर बनना चाहिए था, चलो अब सिंगिंग करते हैं। उसके बाद वो फिर सिंगिंग फील्ड में जाते हैं, वहां पर तब उनको रियल सक्सेस मिलती है। एब्सोल्युटली, आई थिंक मुझे अभी याद आ रहे हैं ऐसे एग्जांपल्स, बोमन ईरानी जिन्होंने अपना एक्टिंग करियर काफी लेट शुरू किया, एंड इवन द ओनर ऑफ केएफसी जो कि आई थिंक वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड स्टैंडिंग देयर, एंड देन उनको याद आया सडनली कि मैं तो चिकन बर्गर्स बहुत अच्छे बनाता हूँ, तो लेट हम्म। मी जस्ट गो एंड मेक चिकन बर्गर्स। वो बहुत हम्म। अंडर डेट चल रहे थे और उन्होंने सोचा कि नहीं, आई विल गो एंड मेक चिकन बर्गर्स, तो उन्होंने जाके चिकन बर्गर्स बनाने शुरू किए। सो यस, दिस innate talent is inside everybody, like Prakhar is saying. अब इसको पहचानना is the only thing that we have to figure out as humans on this planet. इंसान खुद पहचान लेता है, और जब खुद नहीं पहचान पाता, फिर गॉड क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ, ऐसे सिचुएशंस भेजते हैं कि आप मजबूर हो जाओगे उसको पहचानने के लिए। पहचानने के लिए, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू। तो अभी सब लोग बोलेंगे कि ये सब तो बातें ठीक है, बट हम ऐसा क्या कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस? व्हाट आर द प्रैक्टिसेस that will keep bringing me back to the present, or keep bringing people back to the present, instead of getting trapped in imagined futures? Because हमारे माइंड को ना हॉरर स्टोरीज बनाना बहुत पसंद है। सो तो ऐसी कोई रिचुअल्स हैं, ऐसी कोई मूवमेंट है, कोई कॉन्वर्सेशंस हैं या साइलेंस प्रैक्टिसेस हैं जो कर सकते हैं लोग, जिससे कि वो इस मोमेंट में रह सके रादर दैन कि आगे या पीछे भागने के? डेफिनेटली लोगों को अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तो इसकी शुरुआत उनको विजुअलाइजेशन से करनी चाहिए, विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट एवर द थिंग दे वांट टू अचीव। हम्म। अब जब मैंने बोला विजुअलाइजेशन करना उस चीज का जो उनको पाना है, लेकिन इससे पहले हम ये भी बात कर चुके हैं कि आपको आउटकम की तरफ नहीं भागना है। हम्म। भागना नहीं है, लेकिन विजुअलाइज करना वो आपके कंट्रोल में है। हम्म। आप ये चाहते हैं कि मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसके बारे में सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, फिर कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, उसके लिए एक्शन प्लान बनाइए, स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक डाउन कीजिए, और जो सबसे छोटा स्टेप हो फिर उसको देखिए कि आज उस छोटे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए आज आप क्या कर सकते हैं। आज आपके कौन से टॉप 3 टास्क होंगे उस एक्शन स्टेप नंबर 1 तक पहुंचने के लिए। बस हर रोज आपको यही करना है। फिर आपको गोल मिले या ना मिले, लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट में ही जिएंगे, और आप उस जर्नी को एंजॉय करेंगे, बिकॉज आपके मन में ये है कि मुझे वो गोल इससे अचीव हो जाएगा। होगा या नहीं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बट इसके चलते बस ये हो जाएगा कि मन खुश रहेगा, अंदर शांति रहेगी, धैर्य बना रहेगा, और आप एक बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। प्रेजेंट में जो आप करेंगे उसको आप एंजॉय करेंगे, और जब आप प्रेजेंट में हैं, तो फिर कहाँ पास्ट और कहाँ फ्यूचर, कुछ नहीं रहेगा। अगर फ्यूचर के बारे में सोचना है तो सिर्फ विजुअलाइजेशन से सोचिए, और पास्ट के बारे में जाकर के सोचना है तो जाकर के थैंक यू बोल दीजिए कि अच्छा हुआ यहाँ आपने मेरे पास में अपनी प्रेजेंस दिखाई, आपकी वजह से मैंने कुछ सीखा। लेकिन अब मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके बोलता हूँ कि जैसा आपने मुझे बनाया है, जो मैंने कुछ सीखा है, उसको मैं दोबारा कभी रिपीट नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। तो फ्यूचर राइट। का विजुअलाइज करके प्रेजेंट में एक्शन स्टेप बना करके हर रोज वो काम करते चले जाइए जो उसमें ऐड करेगा आपको स्टेप्स को कंप्लीट करने में। बस यही एक तरीका है। और इसके अलावा जो बात हमने की कि क्या हमें ऐसे कन्वर्सेशन करनी चाहिए, डेफिनेटली ऐसे लोगों के बीच में चाहिए जहाँ पर हेल्दी कन्वर्सेशन हो। जहाँ पर हेल्दी कन्वर्सेशन का मतलब सिर्फ आगे का सोचना, अच्छा सोचना नहीं, बल्कि आपके मन में कोई नेगेटिविटी भी है तो उसको भी आप लोगों से शेयर करें। लोगों के पास एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको हेल्प करेंगे ओवरकम करने में। ऐसे हम्म। कम्युनिटी में रहिए, ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पर कोई आपका एक मेंटर हो, या ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को समझ सकें, आपको थोड़ा सा धैर्य भी दिला सकें, बोले नहीं भाई सबकी लाइफ में होता है, डोंट वरी एट ऑल, एक दिन ये भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ अकेले रह गए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि साइलेंस में नहीं जाना, एवरी डे यू हैव टू गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स ऑफ साइलेंस। कम से कम एक बार 10 मिनट अकेले बैठिए, और उसके बाद में फिर आप लोगों से भी मिलिए, अच्छे लोगों से, मेंटर से भी कनेक्टेड रहिए, और कम्युनिटीज में भी
तो आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी, प्रेजेंट चलते रहेंगे, गोल्स भी अचीव होते रहेंगे। Absolutely. Thank you, Prakhar. This is amazing. Visualizing the future and thanking the past. जो भी हो गया उसको थैंक यू बोलें और विजुलाइज करें फ्यूचर को। मैं बस इसमें एक चीज ऐड करूंगी कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में कभी कभी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं एंड नहीं आ पाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, आई थिंक बॉडी जो है हमारी आउटर मोस्ट कोशा, अन्नमय कोशा, इज द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो मे बी जस्ट गो फॉर अ वॉक। कभी कभी आप वॉक भी माइंडलेसली करते हैं, तो गो फॉर अ माइंडफुल वॉक। अभी माइंडफुल वॉक का क्या मतलब होता है कि आप हर स्टेप के साथ कुछ बोलेंगे। तो एक मंत्र बोल सकते हैं, स त ना मा। ठीक है, तो हर एक स्टेप के साथ, जैसे एक स्टेप लिया स, फिर त, फिर न, फिर मा। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, ये आप बाहर भी कर सकते हैं, यू कैन डू दिस एनीवेयर। ये आपको इमीडिएटली प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट कराएगा, या जस्ट हैविंग दैट फीलिंग कि हाँ मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, रादर देन कि हम फोन देखते देखते या हम कुछ कान में सुनते सुनते चलाएं। वॉकिंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इजीएस्ट मेथड है, हम सब कहीं ना कहीं जाने के लिए वॉक करते ही हैं। तो इट्स द इजीएस्ट मेथड। आप घर में भी कर सकते हैं, अपने लिविंग रूम से किचन या लिविंग रूम से बेडरूम में जाते हुए, जस्ट सेइंग दिस सतनामा विद the every step that will bring you immediately to the present moment, and plus it is a mantra, so there is no doubt about it that it will help you a lot. So the next question is कि आपको क्या लगता है, do you really think living fully is about having extraordinary मोमेंट्स की हमारी लाइफ में हर रोज हम स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग ये सब कर रहे हो, और या एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंसेस, या फिर इट इज अबाउट पेइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अटेंशन टू द ऑर्डिनरी मोमेंट्स? जैसे ये भी एक मोमेंट है अभी वेयर वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो यस। पेइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अटेंशन टू दिस ऑर्डिनरी मोमेंट, व्हाट डू यू थिंक इट इज अबाउट? ये एग्जैक्टली उसी से कनेक्टेड है जो अभी आपने बताया, बी 100% प्रेजेंट फुली विद योर माइंड। तो माइंडफुलनेस जरूरी है, तो आपको बस यही करना है। ये जरूरी तो नहीं होगा कि हर वक्त और हर रोज आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे या फिर आप ही उनको क्रिएट करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन टू दोज ऑर्डिनरी मोमेंट्स, जिसकी वजह से फिर वो जो एक्सपीरियंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, वो आपको जॉय और हैप्पीनेस प्रदान करेगा। Absolutely. I think every moment when we are living is an extraordinary moment. I used to listen to Sadhguru a lot, and he used to say, check every hour. I'm alive. I'm यस यस alive. I'm alive. Every single hour or every single minute. Minute thoda zyada ho jata hai, maybe every hour. Yes, have an alarm and say, I'm यस यस alive. Or you can use another method from from somebody else. I picked up that every hour you should have an alarm saying extraordinary hour. Okay. So this is an extraordinary hour. So how do you make it extraordinary? It is up to you. अभी आपको वो रो के extraordinary बनाना है, या वो आपको हंस के बनाना है, या आपको कुछ और करके बनाना है, whatever it is, you make it. So like Prakhar rightly said, that it is about having extraordinary attention in these ordinary moments and making every moment of every day extraordinary. The last question that I have is that अगर आप हमारे listeners को एक रिमाइंडर के साथ छोड़ते फॉर द डेज व्हेन वरी टेक्स ओवर, तो वो क्या रिमाइंडर होगा? ओके। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी को जीते हुए यहाँ तक आए हैं। और अगर यहाँ तक आए हैं, यू हैव कम सो फार, डू यू नो व्हाई? बिकॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड द ग्रेस ऑफ गॉड जो आपको मिली हुई है। तो अगर यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो वो सिर्फ अपनी वजह से और भगवान की कृपा की वजह से। तो जब आपको ये मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पर हैं, तो आपके खुद की वजह से और भगवान की कृपा की वजह से हैं। तो फिर व्हाई नॉट यू कीप कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, यानी अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, अपने आप को बनाए रखिए उस लेवल का जो डिजर्व करता है उन सारी चीजों को जो आप पाना चाह रहे हैं। प्लस मेक योरसेल्फ कनेक्टेड टू द गॉड। आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए, भगवान को मत छोड़िए। डू डेली प्रेयर्स, बी इन टच विद गॉड। खुद से टच में रहिए, भगवान से टच में रहिए। ये दो ही वो चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाती रहेंगी। और हो सके तो स्पिरिचुअल इवेंट्स में आप भागीदारी कीजिए। कुछ आप डोनेशन अगर आप दे पाए तो जरूर दे दीजिए। और इसके अलावा जो आपको फ्यूचर में काम करना है ना, जो आपको पहुंचना है जहां पर, उसके लिए स्टेप्स तो लिखे ही होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिखिए और हर रोज उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। 100 फुली 100 आई मीन टू से कि 100% माइंडफुली आपको काम करना है।
तो खुद पर भरोसा कीजिए, खुद से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, क्योंकि कोई तो एक ऐसी पावर है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। वो आपको भी चला रही है, आपके ना चाहते हुए भी। राइट। एवरीथिंग आपके अराउंड जो भी हो रही है, जो सिचुएशंस, मोमेंट्स, इवेंट्स, वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वो गॉड्स ग्रेस है। तो वहाँ कनेक्टेड रहिए और एंड रिजल्ट के ऊपर मत जाइए, सिर्फ जर्नी को एंजॉयमेंट के साथ कैसे कंप्लीट करना है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। Amazing. Thank you, Prakhar, because I think जो प्रखर ने कहा, having faith and then having patience, having surrender and having commitment. I think ये चार चीजें अगर आपके पास हैं, faith, patience, surrender और commitment. There may be some people जो कहेंगे हम भगवान को नहीं मानते, तो किसी भी पावर में, जिस भी पावर में आपका भरोसा हो, उसमें फेथ कर लीजिए. देयर इज पेशेंस, क्योंकि हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड वी हैव ऑलरेडी सेड दिस, प्रखर हैज ऑलरेडी टोल्ड दिस इन दिस पॉडकास्ट, दैट हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड सरेंडरिंग, बिकॉज हाउ हमारे हाथ में नहीं है, व्हेन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में दिस मोमेंट, दिस इज द ओनली थिंग. सो कमिटमेंट टू दिस पर्टिकुलर मोमेंट, making it extraordinary and living it beautifully. I think that is what this is about. Any last words, Prakhar, for our viewers, listeners? Anything you want to share? डेफिनेटली मैं बस यही बोलूंगा कि कभी कभी आपके सपने इसलिए भी पूरे नहीं होते क्योंकि भगवान को उससे भी बड़ा सपना आपका पूरा कराना होता है। तो अगर कोई छोटा सपना पूरा नहीं हो पा रहा तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कोई एक बड़ा सपना जो उससे भी बड़ा हो वो पूरा होने वाला हो, और फिर आपको लगे यार मैं तो इस छोटे से सपने के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, इतने छोटे से सपने की वजह से मेरा ये बड़ा सपना छूट जाता, रह जाता। तो इसलिए जस्ट गो विद द फ्लो, भगवान ने कुछ सोच रखा है आपके लिए, बट आपका ये काम है कि आप अपना बेस्ट देते रहिए, धार्मिकता, राइटियसनेस के पाथ पर चलते रहिए, दूसरों को प्रॉब्लम मत कीजिए, और अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपका, जैसे बोला जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, वो आपके साथ भी होकर के रहेगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं अच्छे लोगों के लिए है जो गलत काम नहीं करते। जो गलत काम करेंगे, जो जालसाजी करेंगे, जो षड्यंत्र रचेंगे, दूसरों को धोखेबाजी करेंगे दूसरों के साथ, तो उनके साथ में ऐसा कभी अच्छा नहीं होगा। प्रेजेंट में अच्छा हो सकता है बट एंड रिजल्ट उनका बुरा ही होगा। फिर चाहे आप कितने भी वेद पुराण उठा करके देख लीजिए, जितने भी खराब लोग थे उस वक्त में बहुत अच्छा हुआ, एंड रिजल्ट उनका खराब हुआ। तो चॉइस आपकी होगी कि आपको एंड रिजल्ट अच्छा चाहिए या प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ अच्छा चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट जो अच्छा हो वो टेम्पररी वाला होगा, क्योंकि आप गलत काम करके अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू ओवर कंट्रोल द थिंग्स एंड द मोमेंट्स एंड इवेंट्स, वो आप मत कीजिए। तो एक अच्छा इंसान बनिए, अच्छा इंसान बनेंगे, सहजता से सारी चीजें आपके लाइन में आ जाएंगी। आपके लाइफ में हर वो चीज होगी जो आपके लिए जरूरी है, जो आप चाहते हैं वो नहीं, जो आपकी बेहतरी के लिए जरूरी है वो आपको जरूर मिल जाएगी, और उसी में आपको खुश रहना चाहिए। तो बस यही मेरा। Basically, not what you want, but what you need will be available to you. ठीक है, will be डेफिनेटली provided to you rather. So एट that's एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, जब every आप point जब of भी time. जिस वक्त पे होंगे ना उस वक्त पे हर वो चीज आपके पास में होगी जो आपके लिए जरूरी है, उसके अलावा कुछ और चीज आपको मिलेगी ही नहीं। आपको बिल्कुल. लग रहा है कि अभी मैं दुख में हूँ, तो आप दुख में इसलिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जिंदा हैं, तो आपके आसपास वो चीजें हैं जो अभी आपको जरूरी है। क्योंकि शायद आप अभी उस लेवल के इंसान नहीं है जो, अगर आपको अभी 1 करोड़ आपको चाहिए पैसा, अभी आपको 1 करोड़ दे दिया जाए, अब आप क्या करोगे मुझे बताओ। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 1 करोड़ चाहिए, आप बोले पैसा नहीं, पैसा नहीं है। 1 करोड़ कहीं से आ जाए आपके सामने रखा हो, अब आप बताओ क्या करोगे। आप परेशान हो जाओगे कि 1 करोड़ आ गया, इतनी जल्दी आ गया, अब मैं क्या करूँ इस पैसे का। आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको चाहिए कि यार मेरे पास से कोई ऐसा इंसान है जिसको मैं भरपूर प्यार कर सकूं। ठीक है, पर्सन आ गया, करो आप प्यार, क्या करोगे उसके बाद। मैं बोल रहा हूँ ये जो सुख होगा वो टेम्पोरेरी होगा, क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा। उसके बाद फिर आपको लगेगा यार ये तो खत्म हो गया, अब क्या चाहिए, कुछ और चाहिए अब। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हम नॉर्मल अपनी शॉपिंग में या किसी चीज में भी देख सकते हैं. इंसान एक सोचता है कि आई विल गेट दिस एंड गेट दिस एंड गेट दिस, एंड देन व्हेनेवर जब भी वो चीज आ जाती है आपके पास, देन इट बिकम्स लाइक ऑर्डिनरी, रूडिमेंट्री, कि हाँ आप तो आ गई. इसलिए हम देखते हैं इतने सारे लव मैरिजेस होते हैं, एंड देन कुछ सालों के बाद लव उड़ जाता है, क्योंकि जब लव मैरिजेस चाहिए थी लोगों को तब तो पीपल वर परस्यूइंग लाइक एनीथिंग, कि ओ माय गॉड तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए. एंड देन आफ्टर दैट जब वो आ जाता है इंसान आपकी लाइफ में, या आ जाती है इंसान आपकी लाइफ के बाद, इट डजेंट मैटर कि आप कौन हो. एंड रही बात पैसे की, तो जो ब्रदर ने कही, आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल, क्योंकि इफ यूर इन इंडिया,
And if you have watched Kaun Banega Crorepati, so many people have become crorepati's and so many people have lost that money immediately. तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या है अभी, बट क्या आपको उसकी जरूरत है वाकई में, और क्या आपकी लाइफ में वो वाकई में जरूरी है, क्या आपको वो वाकई में चाहिए, तो आपको वो अवेलेबल होगा, नहीं तो वो आके भी चला चला जाएगा जाए। आपकी लाइफ से. So I think this is so amazing. Thank you, Prakhar, so much for this amazing conversation, and I hope you enjoyed it. And I'll keep bringing more such conversations for you guys. Thank you for being here, and have a great day. Definitely. Bye. Thank you so Thank much. you.